डिस्कसिंग प्रॉब्लम 4-36 और हमने 2 डायमेंशनल में मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. अब जो है वो थोड़ा सा हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस. ओके, 3 डायमेंशन के प्रॉब्लम में जिस तरह आज शुरू में हमने लेक्चर में कहा था, वी आर गोइंग टू यूज वेक्टर फॉर्मुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट्स सिंस it is difficult to calculate the perpendicular distance in case of 3 dimensions, so we are going to use r cross f. और r cross f में फिर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं. So starting with problem 4-39, we need to determine the resultant moment produced by these two forces f1 and f2, which are already written in terms of Cartesian notation about point O. So we need to calculate the moment of these two forces about point O, the resultant moment. Moreover, we need to express the result as a Cartesian vector form. तो ऑटोमेटिकली जब हम r क्रॉस f से मोमेंट निकालेंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म की उसमें मिलेगी. तो हम जो है वो वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू राइट or apply the vector formulation for finding the moments of these two forces, we will be requiring the coordinates of these 2 points. The first one is point O, which is the origin of the coordinate system, so it should have coordinates 0, 0 and 0. अगर हम point A की बात करते हैं तो can you identify the coordinates of point A? Sir, 3 जी 2 अच्छा and और 2 and or 2 or minus 2. -2. So 3, 2 and -2 are going to be the coordinates of this position vector r. So in order to take r cross f, कौन सा position vector हमें define करना चाहिए आपके ख्याल में? जी, any idea कि कौन सा position vector हमें define करना चाहिए? Shouldn't be the position vector ROA? Yes sir. ठीक है. क्या इसी ROA को मैं F1 और F2 दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? सर कर सकते हैं. So मैं करूंगा क्या कि आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड फाइंड द वेक्टर फॉर्मुलेशन MRA which represents the resultant moment about point A. जिस तरह से पहले डिस्कस हुआ है, it is going to be R cross F, लेकिन चूंकि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, so it is going to be ROA cross F1 plus ROA cross F2. So I am going to take the cross product of this position vector with both these forces, ROA cross F1 plus ROA cross F2. In order to apply it in vector formulation, हम करेंगे क्या कि उसी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे. सो I J K आपके पास आ गए. अगर मैं इस ROA वेक्टर की बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी 3I plus 2J minus 2K. ये मेरे पास वेक्टर ROA आ जाएगा. सो आपके पास यहाँ 3, 2 और -2 जो है वो R के कंपोनेंट्स आ गए. अगर मैं F1 की बात करूं तो वो मुझे कंपोनेंट्स गिवन है -20, 10 एंड 30. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिटर्मिनेंट. इसी तरह अगर मैं सेकंड डिटर्मिनेंट की बात करूं I J K, ये मेरे पास सेकंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3, 2 -2. और F2 के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज -10, -30 and 50. So I'm going to expand these two determinants in order to find out the resultant force. So पहले आपने पहले determinant को expand किया, you are going to get this solution. When you expand the second determinant, you are going to get this solution. So overall, the resultant moment is going to be 200I minus 180J plus 30K. So this is the resultant moment which these forces are going to create about point O. जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लें. एनी क्वेश्चन? Shall we move forward? Yes sir. चलें. So moving on to the final problem of this topic, which is problem 4-46. You have a force which is being applied at the orientation shown. This force has a magnitude of
80 Newton, and we need to determine the moment of this force about point B. So this is point B, and we need to find out the moment of this force about point B. So which position vector you would be requiring here in order to find out that R cross F? कौन सा position vector आपको चाहिए? CA. You have to calculate moment about point B. तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहते हैं कि कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर जो उस पॉइंट से ओरिजिनेट हो और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक जा रहा हो. फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का कोई पॉइंट आपको नोन है? कौन सा पॉइंट नोन है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का? C. Point C known है. So you are going to define a position vector which is this position vector RBC, and you are going to take the cross product of this position vector RBC with this force vector in order to find out the moment. So in order to write the position vector, you would be requiring the coordinates of point B and point C. So as per this diagram, the coordinates of point B are 0, 0.4, 0. ऐसे ही है. Okay, what about the coordinates of point C? सही है 100 नहीं लिखी है सर. कौन सा 100? तो 400 लिखा है सर, वो 40 लिखा है. 0.4 मीटर में कन्वर्ट किया. 400 मिलीमीटर था, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में. ठीक है सर 5.5. दोबारा देख लें सर 0.5. सॉरी सर 0.55. जी ठीक है. So it is going to be 0.55 or 0.4. the y coordinate is going to be 0.4 and minus minus 0.2. Minus 2. minus 0.2. So overall, this point C would have a coordinates of 0.55, 0.4 and minus 0.2. I hope कि ये coordinates हर एक को clear होंगे. Okay, now in the next step, since we need to define this position vector R, अगर हम इस R position vector जो कि हमारा position vector RBC है, इसको कार्टेशियन नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो that would become 0.55I. 4 और 4 चूँकि सेम है तो आपके पास J को कंपोनेंट नहीं आएगा. इसके अलावा आपके पास 0.2 K जो है वो आ जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव So 0.55I minus 0.2K is going to be this position vector. I hope this position vector is clear to all of you. कोई question regarding this position vector? सर J का कंपोनेंट क्यों नहीं आया? देखें J कंपोनेंट देखें ना 0.4 यहाँ भी है पॉइंट C का, 0.4 B का भी है. तो क्या करते हैं हम C में से B के कंपोनेंट्स को माइनस कर लेते हैं तो 0.4 minus 0.4 would be equal to 0. ठीक है. अच्छा चलें अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वी नीड टू राइट दिस फोर्स F in terms of its Cartesian notation, isn't it? So थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें. I am going to resolve this force F first of all into its two components, जो कि पहला कंपोनेंट आपके पास ये कंपोनेंट आ रहा है which is within the xy plane. ये वाले कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ और चूंकि आपको एंगल 30 डिग्रीज गिवन है, इट मींस कि आपको ये रेड कंपोनेंट जो है ये 80 cos 30 के बराबर गिवन है जो कि xy प्लेन में लाई कर रहा है. इसके अलावा आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट बन रहा है वो ये वाला कंपोनेंट है. सो दिस कंपोनेंट वुड बी 80 sin 30 और ये पॉजिटिव z के डायरेक्शन में या नेगेटिव z के डायरेक्शन में? सर नेगेटिव z की डायरेक्शन. Negative z. So I can write the z component to be minus 80 sin 30 k. ये z component हर एक को समझ आ गया है? यस सर. ठीक है, क्योंकि ये तो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बेइंतहा प्रॉब्लम्स
इस किस्म की ओरिएंटेशन में किए थे जिसमें फोर्स को कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में लिखना था। तो एक तरह से चैप्टर 2 के उन टॉपिक्स की रिवीजन है। सो आपके पास दो कंपोनेंट्स बन गए फोर्स के। वन इज द कंपोनेंट इन द एक्स वाई प्लेन जो कि 80 cos 30 है, द अदर वन इज द जेड कंपोनेंट जो कि नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। सो इसका मैग्नीट्यूड 80 sin 30 हो गया विद अ नेगेटिव साइन। ओके, नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट व्हिच लाइज विद इन द एक्स वाई प्लेन, इसको मैं अगर सब डिवाइड करूं x और y कंपोनेंट में, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट आ रहा है विच इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, ये कंपोनेंट आ रहा है विच इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। सो एंगल आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। इट मींस कि आपका जो y कंपोनेंट है ये बन जाएगा 80 cos 30 cos 40, ऐसा ही है। और x कंपोनेंट बन जाएगा 80 cos 30 sin 40। आई होप कि ये कंपोनेंट हर एक को समझ आ गए हैं। Yes, sir. Okay, so I can write the components here in terms of Cartesian notation as 80 cos 30 sin 40 I plus 80 cos 30 cos 40 j. So now the force is being written in terms of its Cartesian notation. So once I am going to put the values, I am going to get 44.5 I plus 53.07 j minus 40 k. ये मेरे पास I j k components आ गए. Now I need to calculate the moment of this force about point B. So it is going to be R B C, the position vector cross F. तो ये आपके पास हो जाएगा I j k 0.55 0 minus 0.2 और यहाँ आपके पास 44.5 53.07 minus 40। ये आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से डिटर्मिनेंट आ गया। वंस यू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट यू आर गोइंग टू गेट द moment vector. I hope कि these moment vector is clear to all of you. कोई point हो आपका, कोई query हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। So now I hope कि आपको 2D या 3D से relevant कोई भी problem दिया जाए for calculating the moment, आप calculate कर सकते हैं। Kindly थोड़ा सा अगर हम इस टॉपिक के शुरू में जाएं, आपको ये जो स्लाइड दिखाई गई थी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज के अभी यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। जो प्रॉब्लम्स बच गए हैं जो हमने क्लास में सॉल्व नहीं किए, आप उसको एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे अपने प्रैक्टिस के लिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट सम स्पेसिफाइड एक्सिस। अप टिल नाउ हमने जो मोमेंट की बात की है, जब भी हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट वो मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट सम स्पेसिफिक एक्सिस, उसके लिए जो है वो प्रोसीजर क्या होता है उसके हवाले से हम यहाँ बात करेंगे। और थोड़ा सा अगर आज टाइम बचा तो एक आध एग्जाम्पल भी इस प्रॉब्लम से रेलिवेंट करेंगे और बाकी चीज़ें जो है वो हम कल के लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ज़रूरत क्यों पेश आई है हमें इस मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस कैलकुलेट करने की? थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें और इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करें। Sometimes the moment of a force produced about some specific axis must be determined. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि you need to lose the nut which is shown to you here, and you need to lose this nut by applying a force F which is being applied at the end of this wrench. So the force applied to the wrench will create a tendency for the wrench and the nut to rotate about the moment axis passing through point O. However, the nut can only rotate about the y axis. चलें, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, अगर हम मोमेंट के डायरेक्शन की बात करें, what should be the direction of moment? आप जब r क्रॉस f लेते हैं, स्केलर फॉर्मुलेशन कर लें या वेक्टर फॉर्मुलेशन कर लें, दोनों सूरतों में जो हमने मोमेंट के डायरेक्शन को डिस्कस किया है इससे पिछले टॉपिक्स में, वो क्या होता है? कोई एक स्टूडेंट जो बता सके what should be the direction of moment? सर या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखिए, वो तो आप 2D की बात कर रहे हैं। अगर हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करें तो r क्रॉस f
से आपको मोमेंट मिल रहा होता है. Now what should be the direction of that perpendicular moment? Perpendicular to what? perpendicular दोनों r cross f. Perpendicular to the plane. R and F. जी, perpendicular to the plane containing R and F. ऐसा ही है. Yes sir. चलें, अब थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें. आप एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस रेंज विच इज दिस फोर्स F. अगर मैं R की बात करूं तो ये आपका वो पोजीशन वेक्टर R होगा. ऐसा ही है. Yes sir. अच्छा, अब ये R और F जिस प्लेन में पड़ते हैं वो प्लेन मैंने यहाँ येलो लाइंस के साथ जो है वो शो किया है. सो दिस शुड बी द प्लेन कंटेनिंग R and F. नाउ एज पर आवर डिस्कशन ऑफ मोमेंट, what should be the direction of this moment vector? It is going to be perpendicular to the plane containing R and F. ऐसा ही है. Yes sir. तो ये हमारे पास MO आ गया which is going to be perpendicular to the plane containing R and F. So the direction of MO आपके पास यहाँ शो किया गया है. अब ये जो नट है टायर के ऊपर, जो नट जिसको आप लूज करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, about what axis this nut can rotate? About y-axis. This nut can only rotate about the y-axis. So instead of this overall moment MO, you are only interested in the moment produced about the y-axis, because that moment My is basically responsible for the rotation of that nut. तो आपके पास ये जो MO है इसके बजाय you only require the value of My, because that moment would actually be deciding कि ये नट जो है वो किस हिसाब से रोटेट हो रहा है. So therefore to determine the turning effect, only the Y component of this moment would be required, and the total moment MO produced is not important. So to determine this component we can either use the scalar or vector analysis. In other words, आपको जो है वो मोमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग है. वो एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकती है, वो किसी प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस भी हो सकती है, या एनी जनरल एक्सिस भी हो सकती है. पहले हम इसी वाई एक्सिस की बात करेंगे, फिर उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन को जनरलाइज कर देंगे. तो ये जो टॉपिक है इसकी ज़रूरत क्यों हमें पेश आई है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई है कि कभी कभी हमें मोमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ता है. उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस टॉपिक में हम उस प्रोसीजर की बात करेंगे. सो आई होप कि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हर एक को क्लियर है. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये बाकी मोमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या होगा? मतलब कि देखिए वो एक तरह से ज़ाया हो रहे होंगे. आपकी जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो सिर्फ My है, बिकॉज जो नट है उसमें रोटेशन जो पॉसिबल है वो सिर्फ इसी कंपोनेंट में पॉसिबल हो सकती है, या इसी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है. सर ठीक है, चलें. सो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा हम पहले स्केलर तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं कि ये My क्या होगा, और उसके बाद थोड़ा सा वेक्टर फॉर्मुलेशन के जरिए इस My को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें अपने इस टॉपिक को जनरलाइज किसी भी जनरल एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्सपेंड कर देंगे. ओके, सो स्केलर तरीके से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें My, तो ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट D. सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट D है, आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between this force and the y-axis? It is this distance which is being represented here as dy. So if this distance is d, this angle is theta, so dy would be equal to d cos of theta, isn't it? Yes sir. Okay, so the overall moment would be Ma to be equal to force multiplied by d cos of theta. So आपके पास स्केलर फॉर्मुलेशन में तो बहुत सिंपल है चीज़. अगर 2 डायमेंशन में आप चीज़ कर रहे हैं तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने डिटरमिन कर लिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, यू आर गोइंग टू गेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट y विच इज My. जहाँ तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, तो वंस यू आर कर्लिंग योर फिंगर्स यूजिंग द राइट हैंड रूल, in what direction this thumb is pointing? Sir, along positive y-axis. Along the positive y-axis. So this moment My is basically directed along the positive y-axis. Magnitude उसका हो गया f into d cos theta, और direction उसका positive y-axis के along हो गया. In general, for any axis A, the moment can be calculated as Ma equal to f into dA, where f is the magnitude of force and dA is basically the perpendicular distance between the
line of action of that force and the axis जिसके about आप moment calculate कर रहे हैं. I hope कि ये scalar analysis हर एक को समझ आ गया है. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब ज्यादा कंफ्यूजन किस में आती है जब हम इसकी वेक्टर एनालिसिस करें, और जनरली आप प्रॉब्लम्स के ऊपर वेक्टर एनालिसिस ही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जनरली आपको 3 डायमेंशन में कोई फोर्स, यहाँ तो फोर्स सिंपल है, वो एक एक्सिस के अलॉन्ग ही गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान था. बट जनरली अगर मैं इस फोर्स को से टर्न कर दूं, 3 डायमेंशन में कर दूं, तो फिर इसकी वजह से मोमेंट अबाउट एक्स या वाई या जी एक्सिस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इस सूरत में हम फिर वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एनी स्पेसिफाइड एक्सिस, आइदर एक्स वाई जी और एनी जनरल एक्सिस ए. तरीका क्या होता है, थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस के हवाले से बात करें. टू फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एफ अबाउट द वाई एक्सिस, अगेन हम वाई से शुरू करेंगे और फिर हम इसको जनरलाइज किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे. So in order to find out the moment of this force F about the y-axis using the vector formulation, we need to first determine the moment of this force about any point O on the y-axis by applying R cross F. इससे पहले तक हमने बात यही की है कि ये आपके पास वो पोजीशन वेक्टर R आता है, ये आपके पास वो फोर्स आती है. इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें MO मिल जाएगा, which is being defined as R cross F by taking the cross product of any position vector R starting from point O to the line of action of that force F. अभी आपके पास MO आ गया. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये My जो है ये MO से किस तरह रिलेटेड है? सर y कंपोनेंट है. बेसिकली My जो है it is one of the components of MO. So आप इस MO की एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन है along the y axis, isn't it? Yes, sir. ठीक है. So Yes, the sir. component My which is acting along the y axis is basically a projection of MO onto the y axis. And if you remember chapter number 2 का जो आखिरी टॉपिक हमने किया था डॉट प्रोडक्ट, कुछ याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट वो हमने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो कंपोनेंट है या ये जो प्रोजेक्शन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज बेसिकली इक्वल टू जे डॉट MO, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस एंड MO, isn't it? कुछ याद आ रहा है ये डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक या नहीं याद आ रहा? एनी स्टूडेंट हु वांट टू कमेंट? चलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. जिस तरह अभी हमने बात की, थोड़ा सा गौर से सुने. जिस तरह अभी हमने बात की कि जब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस My which is the moment of this force about the y-axis only using this vector formulation, हम पहले ये MO कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास R क्रॉस F से आएगा, जिसमें R आपका कोई भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा which is being defined from point O या वो जो एक्सिस का पॉइंट है to the line of action of that force क्रॉस F which is the Cartesian vector notation of this force. MO जब आपको मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस F से, आप उस पर्टिकुलर वेक्टर को MO को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यूजिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट एक्सिस जिसके अबाउट आपने मोमेंट कैलकुलेट करना है. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट अबाउट y एक्सिस, इट इज गोइंग टू बी j डॉट यूनिट वेक्टर j डॉट MO. अगर आपने यही मोमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट द x एक्सिस, तो इट इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर I डॉट MO, यानी डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपने यूनिट वेक्टर का जो उस एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और साथ साथ आपने MO का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. अब डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे आपको स्केलर चीज मिलेगी या वेक्टर चीज मिलेगी? स्केलर. आपको एक अदर स्केलर वैल्यू मिल जाएगी. सो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस My यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट और Mx यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट. डायरेक्शन क्या होगा उस पर्टिकुलर My या Mx का? जिस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है. अच्छा, बिल्कुल सही. सो इफ इट इज अलोंग My तो आपके पास डायरेक्शन इसका j एक्सिस के अलोंग आ जाएगा. इफ इट इज अलोंग Mx तो आपके पास डायरेक्शन इसका I एक्सिस के अलोंग आएगा. तो जब जब आपको जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, जब जब आपसे कहा जाए कि आपने किसी भी एक्सिस के अलोंग फोर्स का मोमेंट फाइंड करना है, तो उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि उस एक्सिस के अलोंग आप एक अदद यूनिट वेक्टर ले लेंगे विच कैन बी एनी जनरल यूनिट वेक्टर UA. अगर वो I J K एक्सिस हैं, सॉरी X Y Z एक्सिस हैं, तो I J K आ जाएंगे. अगर वो कोई भी जनरल एक्सिस हैं
तो उसके अलॉन्ग आपका एक अदद यूनिट वेक्टर आ जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे r क्रॉस f के साथ, तो आपको जो है वो मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस a जो है वो मिल जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इज टर्म्ड एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको आप मुख्तलिफ मैथमेटिक्स में जब देखेंगे तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें आप एक तरह से तीन वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसमें से एक डॉट और एक क्रॉस है। इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर क्यों कहते हैं? बिकॉज द नेट रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज बेसिकली अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर कार्टेशियन नोटेशन में आया हुआ है, ये आपके पास वो r क्रॉस f कार्टेशियन नोटेशन में आया हुआ है। सो वंस यू आर गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, आप चाहें तो इसको मजीद मॉडिफाई करके इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रो would represents the components of the unit vector, the second row represents the components of this position vector r, and the third row represents the components of the force vectors f. So ये जब आपसे कहा जाए कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट फाइंड करें rather than finding the moment about some point, जब देखें पॉइंट के अलॉन्ग मोमेंट फाइंड करने तो वो तो सिंपल r क्रॉस f होगा। जब किसी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट फाइंड करने तो वो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उससे फाइंड करेंगे, जिसमें आप पहले उस एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे r क्रॉस f के साथ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी थोड़ा सा हम इससे रेलेवेंट Yes, sir. टाइम बचा है, एक एग्जांपल भी करेंगे जिससे आपको इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस अभी फिलहाल होल्ड करता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपकी ये चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और आज सिर्फ हमारी यही एक एग्जांपल होगी, उसके बाद फिर बाकी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स जो है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को देखें। वी नीड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट द एक्सिस AB। अब AB आपके पास एक्स वाई जी एक्सिस नहीं है, बल्कि ये कोई भी एक जनरल एक्सिस गिवन है, और हमने इस फोर्स का मोमेंट जो है वो फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस AB, विच इज नॉट द एक्स एक्सिस, नॉट द वाई एक्सिस और द जी एक्सिस। क्या तरीका होना चाहिए? अभी जिस तरह हमने बात की है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ अप्लाई करूंगा और मैं मोमेंट फाइंड करूंगा ऑफ दिस फोर्स अबाउट एक्सिस AB, इट शुड बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर UAB डॉट r क्रॉस f। ऐसे ही है। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर फाइंडिंग द मोमेंट अबाउट एनी स्पेसिफाइड एक्सिस। Here the axis AB, so the unit vector would become UAB. So this is going to be the general formulation of this moment. ये चीज क्लियर है रेक को? Yes, sir. अच्छा चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी दिस यूनिट वेक्टर UAB। So coordinates use करके find करना है. So it should be RAB divided by its magnitude, isn't it? So the coordinates of point A are 0, 0, 0. The coordinates of point B are 0.4, 0.2 and 0. So accordingly this vector would become 0.4i plus 0.2j, ऐसा ही है, divided by its magnitude which is 0.447। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे यूनिट वेक्टर। Yes, sir. कर लेंगे। अच्छा चलें, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा गौर से देखें, और चलें पहले एक आसान चीज कर लेते हैं। व्हाट शुड बी द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ F? So minus 300k. So इट magnitude इज गोइंग टू बी माइनस 300k न्यूटन। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन, आपके पास यूनिट वेक्टर भी आ गया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, आपके पास फोर्स भी आ गई इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन नोटेशन। नाउ व्हाट शुड बी दिस पोजीशन वेक्टर R which we are going to use in the scalar triple product? क्या होना चाहिए? sir RAC होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? sir मोहित। मोहित के हिसाब से ये वाला वेक्टर होना चाहिए जो कि RAC है। कोई स्टूडेंट जो कहे कि नहीं इसके अलावा भी कोई वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सर ये सही है। नहीं सही तो है, लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है? सर RBC भी। चलें मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं ये RAD का इस्तेमाल कर सकता हूँ?
यस सर। क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी याद हो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि दिस पोजीशन वेक्टर आर कैन बी एनी पोजीशन वेक्टर विच इज बीइंग डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट ए। अगर आप पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ तो आप चूंकि ए बी एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट कैन बी एनी पॉइंट lying on this axis AB to any point on the line of action of this force, which is from C to D. So it can be RAC or it can be RAD. Clear है ये चीज? यस सर। सर अगर Okay. ए बी एक्सिस से ले रहे हैं ना तो बी से भी हम ले सकते हैं। That's यही मेरा अगला पॉइंट था। क्या इसके अलावा कोई और वेक्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? या सर बी सी या बी डी। It can be either this vector, which is RBC, or it can be either this vector as well, which is RBD. So you can use either RAC in this R cross F. You can either use RAD in this R cross F. You can either use RBC in this R cross F or RBD in this R cross F. So any one of these position vectors can be applied in this R cross F formulation. सबसे आसान क्या है इन चारों वेक्टर्स में से? कौन सा वेक्टर सबसे आसान है? सर AD। RAD. Why it is easier to use RAD? RAD। वजह क्या है आसानी की? सर सिर्फ x कंपोनेंट है ना, X Because component। it lies along the x axis, तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो आपके पास चॉइस है, यहाँ आप इन चारों में से कोई भी वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ RAD जो है वो ज़्यादा सिंपल है यूज करना, तो यू कैन यूज दिस RAD। यहाँ मैंने जो सोल्यूशन की है वो RAB जो है, हमने पहले UAB फाइंड आउट किया, मैंने RAD के साथ सोल्यूशन किया है। आपके लिए एक छोटा सा नॉन सबमिटेड होमवर्क है आज के लिए कि बाकी तीनों वेक्टर्स के साथ भी आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करें एंड ट्राई टू फिगर आउट कि वाकई ये 80.5 न्यूटन मीटर आता है बाकी तीनों वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए या नहीं। ठीक है, सो एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे जो है वो आप बाकी तीनों वेक्टर्स के साथ भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और डिसाइड करें कि क्या वाकई 80.5 न्यूटन मीटर की मोमेंट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, समझ गए हैं तमाम लोग, या किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकें। बेसिकली हमने बात की सर ये नॉन सबमिटेड होमवर्क आप क्या बता रहे हैं? नॉन सबमिटेड होमवर्क आपके पास ये है कि देखें, हमने यहाँ डिसाइड किया था कि चारों वेक्टर्स की मदद से हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ जो सोल्यूशन हुआ है वो हमने RAD के साथ किया है, तो बाकी तीनों वेक्टर्स जो रह गए हैं उनके साथ भी ज़रा आप एक दफ़ा MAB कैलकुलेट करें और चेक करें कि 80.5 न्यूटन मीटर की वैल्यू आपको मिल रही है बाकी तीनों R से या नहीं। ठीक है, Okay, sir. तो एक तरह से ये प्रूफ हो जाएगा आपके उस चीज़ का जो कि हमने इस टॉपिक की थ्योरी में पढ़ा है। इज इट Sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस चलें, सर। तो आप सो इस टॉपिक को अगर हम क्विकली 2 मिनट में रिव्यू करें, हमें जब भी किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट फाइंड करना पड़ता है तो उसके लिए तरीका क्या है कि वी आर गोइंग टू यूज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें हम उस एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट फाइंड करना है उस एक्सिस के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं और साथ साथ हम R क्रॉस F का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें R आपका कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर होता है बिटवीन एनी पॉइंट ऑन दैट एक्सिस टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। इसको हम R क्रॉस F की फॉर्म में लिखते हैं। सो ओवरऑल आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है। अब इसमें आपके पास चॉइस, जिस तरह इस एग्जांपल में जहां आप आसानी समझते हैं वो R की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क एंड एज अ काउंटर चेक के तौर पे आप बाकी 3 वैल्यूज R जो हैं उनके साथ भी जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवेल्युएट करें और चेक करें कि आपके पास तीनों से यही सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। So we are going to stop at this point.